Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss our next lecture that is about taxonomy and science of describing, naming, and classifying taxon characteristics. Research is known as taxonomy. Species are covered and described in taxonomy, while systematics use evolutionary relationships to understand biogeography, adaptation, and tragedies. Taxonomic key is an arrangement of distinguishing features of a taxonomy served प्लीज as थोड़ा सा अच्छा guide बोलें। as touching relationship and names of identified members of the group. It is important part of taxonomic studies and it is used to identify different types of animals. Without any accurate key, it is not possible to identify particular taxa, whereas in certain other cases, it is only the examination and description of a particular specimen. The key is constructed based on the description and not from the actual specimen. In such cases, taxonomic key is treated as a addition of the description built on characters of the specimen. The key should be modified and expanded so that more and more taxa and their characteristics are discovered, are differentiated and added. And when we talk about construction of taxonomic before constructing taxonomic keys, sound knowledge of morphology is essential. One should be well conversant with the technical knowledge of taxonomy. A good style access key requires adequate knowledge regarding factors which are reliable and easily be taken into consideration. Following factors, I think, should be taken into account while constructing a taxonomic key. Knowledge of phylum, class, order, and family of a particular specimen is essential. For example, when we talk about for constructing a taxonomic key of insects, in insects, nature of wings, mouth parts, antenna, and legs provide specific features for construction of a taxonomic keys. Body shape, position of fins, presence or absence of scales, spines, and fins support may help in constructing the keys for identification of species. Emphasis should be given to the color of specimen as the colors sometimes vary and may fade in preserved specimens. The use of keys in identification is basically an old indeed. Much of Aristotle's classification of animals was presented in the form of simple dichotomous alternatives. The purpose of a key is to enable identification and it should not be a vehicle for expressing systematic opinions. First, good systematic characters are very often poor or even unusable key characters, and second, classifying are too frequently subject to modification. तो हमारे पास हम क्यों टैक्सोनॉमी की को डेवलप करते हैं, इसकी रीज़न ये है कि हम हमारी ये जो है टैक्सोनॉमी, इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ नेमिंग करते हैं और जो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनको क्लासीफाई करते हैं। तो एज़ यू नो कि जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, कुछ हमारे पास डिस्कवर्ड फॉर्म के अंदर है और कुछ हमारे पास अनडिस्कवर्ड है। और जब हम कोई भी स्पीशी को न्यू स्पीशी को डिस्कवर्ड करते हैं तो फिर हम उसको उसको हमारे पास चूँकि ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम उसको किसी न किसी ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। और उसको किसी न किसी ग्रुप में प्लेस करने से पहले उसको किसी न किसी ग्रुप से प्लेस करने से पहले हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और चूँकि हमारे पास
कोई ऐसा पर्पस हमारे पास सच मेथडोलॉजी नहीं होती कि हम उसको डायरेक्ट किसी ग्रुप के अंदर प्लेस करें, तो हम अननोन स्पीशीज़ होती हैं हमारे पास, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज़ को डेवलप करते हैं, ताकि हम उनको जो है हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, और जब हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें तो फिर हम उनको किसी न किसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर हम उनको क्या कर सकें, प्लेस कर सकें। Basic purpose of taxonomic key is just to provide identification of that particular species and place them into particular taxonomic category. और जब भी टैक्सोनॉमिक की डेवलप की जाती हैं तो इसके अंदर जो हम हमारा पर्पस होता है वो यही पर्पस होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें, और उसके लिए जो भी पर्सन टैक्सोनॉमी की को डेवलप करता है उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास टैक्सोनॉमी का साउंड नॉलेज हो, उसको डिफरेंट टाइप फाइलम क्लास आर्डर्स जीनस स्पीशीज़ के बारे में उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो। इसके साथ साथ जब भी हम टैक्सोनॉमी की को डेवलप करते हैं तो मोस्टली जो फोकस रखते हैं हम मॉर्फोलॉजी के ऊपर रखते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी को देख कर भी हम जो स्पीशीज़ हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज़ नॉट फॉर ऑल स्पीशीज़ कि हम उनके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स को यूज़ करके हम उनको आइडेंटिफाई करें, बट जनरली जो मॉर्फोलॉजी है हम उसको टैक्सोनॉमी की के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल देते हैं, ताकि जो भी हमारे पास वो जो स्पीशी आई है हम उसको क्या कर सकें, हम उसको क्लासीफाई कर सकें। इसके साथ साथ जब आप डिफरेंट स्पीशीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो फिर आपको उनके करैक्टर्स का भी पता होना चाहिए, और मोस्टली जो हम टैक्सोनॉमी की को डेवलप करते हैं तो उसके अंदर हम सुपरफिशियल करैक्टर्स को लेते हैं या हम उनके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स को लेते हैं। सपोज अगर आपने कोई इंसेक्ट की टैक्सोनॉमी की डेवलप करनी है तो उसके अंदर इंसेक्ट के माउथ पार्ट, उसके लेग्स, उसके एंटीना के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो चूँकि यूज़ करके आप एक टैक्सोनॉमी की डेवलप करके आप बस जो भी स्पीशी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास फिशेज़ हैं उसके लिए आप फिन्स, उनकी स्केल्स का नंबर और उनके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं उस टैक्सोनॉमी की के अंदर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, ताकि जो भी आपके पास जो स्पीशी आई है आप उसको क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। तो बेसिकली जो टैक्सोनॉमिक कीज़ होती हैं उनका एक ही पर्पज़ है कि हम जो भी हमारे पास अनडिस्क्राइब्ड स्पीशी अगर डिस्कवर हो गई है तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, और जब भी टैक्सोनॉमी की डेवलप की जाती है तो उसके लिए बहुत सारे चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। From a user point of view, one of the most important functions of taxonomy is to provide a fast and accurate way to identify organisms, and a taxonomic key, sometimes called diagnostic key, determinator, or artificial key, is basically a series of questions about the characteristics of an unknown organism. By working through it and answering each question in order, the answer user is led to correct identification of unknown organisms. तो जो भी हम टैक्सोनॉमी के अंदर जो कीज़ हैं हम जो उनको डेवलप करते हैं तो उसका एक ही पर्पस होता है कि हम एक फास्ट और एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन जो हमारे पास स्पीशी आई है हम उसकी फास्ट एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन कर सकें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मोस्टली हम टैक्सोनॉमी की डेवलप करते हैं तो उसके अंदर हम सुपरफिशियल करैक्टर्स और ऐसे करैक्टर्स लेते हैं जो ऑब्जर्वेबल हों। हम ऐसे करैक्टर नहीं लेते जिनको हमें बहुत ज़्यादा डीप जो है स्टडी करना पड़े। आल दो के जो बाज़ हमारे पास माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए तो हम बहुत डीप जो है वो की डेवलप करते हैं, लेकिन जो जनरली हमारे पास जो स्पीशीज़ आती हैं उनके लिए हम जो है इतनी ज़्यादा उसकी डिटेल्स मोस्टली ऐसे करैक्टर्स लेते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स हों, जो सुपरफिशियल करैक्टर्स हों, और इसीलिए हम उनको आर्टिफिशियल की भी कहते हैं, जिसका पर्पज़ ये होता है कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म आया है हम उसको क्लासीफाई कर सकें, और जो भी ऑर्गेनिज्म आया हम उसको बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकें। That's why taxonomic key is sometimes called as diagnostic key or determinator key or artificial key,
and it basically consists of a series of questions about the characteristics of an unknown organisms, and by working through it and answering each question in order, the user is led to a correct identification of unknown organisms. As Mayer pointed out in the quotation at the beginning of this topic, the use of dichotomous choices in identifying taxa goes back to classical times. However, biological keys as we know them were first used in the 17th and 18th centuries and became increasingly popular during the 19th and 20th century. They are still an important means of identifying organisms and are found in a variety and level of specification. But beyond that, one of the simple dichotomous keys you may have learned to construct in beginning biology. तो जो मेयर था वो as you know कि there are different types of taxonomy keys, and one of that key is known as dichotomous key, in which we use two alternative traits at a time for a particular character, and these the use of dichotomous choices is in identifying taxa is goes back to classical times. However, the biological keys were used in 17th and 18th centuries, and now they become popular during the 19th and 20th centuries as well. And these biological keys are still an important means of identifying organisms and are found in variety and level of sophistication for beyond they of the simple dichotomous key should may have learned to construct in beginning biology. तो जो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज़ हैं वो डिफरेंट सेंचुरीज़ के अंदर यूज़ हुई हैं ताकि जो भी हमारे पास अननोन स्पीशी है हम उसको डिस्क्राइब कर सकें। चूँकि ये जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज़ हैं इनकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए जो है ये डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कीज़ किया हुई हैं वो यूज़ हुई हैं, लेकिन अल्टीमेट जो पर्पस है डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज़ इज़ जस्ट टू identify unknown organism. And when we talk about taxonomy keys purpose, then taxonomy keys are used in biology for two purposes: recognition of major divisions within a group, यानी जो मेजर डिवीजन है उसमें हम डिफरेंट ग्रुप्स को रिकग्नाइज करते हैं, एंड डिटेल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए टैक्सा टू जीनस और स्पीशी नेम. General keys such as how to know the living things, that was developed by Winchester and Jacques in 1981, and how to know the beetles, that is well developed by Arnett et al. In 1980, helps a beginner identify members of the chief taxonomic subdivisions of a group of organisms. तो जो भी हमारे पास जो टैक्सोनॉमिक कीज़ हैं वो टू पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती हैं. वन पर्पस इज़ जस्ट रिकग्निशन ऑफ मेजर डिवीजन विद इन अ ग्रुप, एंड द सेकंड पर्पस of taxonomy is just detailed identification of taxa to a genus or species name. तो जो भी अननोन हमारे पास स्पीशी आती है तो हम इसकी चेक करते हैं कि क्या ये ऑलरेडी हमारे पास डिस्कवर तो नहीं हो चुकी, या किसी और टैक्सा के अंदर या किसी और जीनस के अंदर ये मौजूद तो नहीं है. और अगर ये किसी और के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर हम उसको उस टैक्सोनॉमी की मदद से हम उसको जो डिफरेंट हमारे पास स्पीशीज़ उस जेनस के अंदर मौजूद हैं हम उनके साथ उसको कंपेयर करते हैं, और अगर वो उनसे मैच ना करती हो और तो फिर हम उसको सेपरेट स्पीशी नेम देते हैं. और ये जो टैक्सोनॉमिक कीज़ हैं इसको डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट क्या करते हैं, डेवलप करते हैं. और ये जो भी टैक्सोनॉमिक कीज़ होती हैं इनके अंदर बेसिकली सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और उन सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस को जो है मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर या कन्वीनियंट बेसिस के ऊपर हम सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन उसके ऊपर उस टैक्सोनॉमी के अंदर डेवलप करते हैं. और उसके अंदर जो करेक्टर के जो टैक्सोनॉमी के अंदर हमने करेक्टर लिखे होते हैं वो हम अननोन स्पीशी के साथ उसके करेक्टर को मैच करते हैं,
और अल्टीमेटली हम किसी न किसी नतीजे के ऊपर पहुंच जाते हैं और हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप जो करैक्टर यूज़ कर रहे हैं आप उनके बारे में अवेयर हों, क्योंकि अगर आप कोई रॉन्ग करैक्टर यूज़ करेंगे जो उस ग्रुप के लिए नहीं होगा तो फिर आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर constructing a taxonomy key. The researcher must know the basics of animal taxonomy as well as different type of taxonomy characters that are useful for the establishment of taxonomy keys. They are generally heavily illustrated and designed to work even if the user has no previous experience with the systematics of the group. They are the ones you may have used at the beginning of your research for an unfamiliar species. यानी ये जो हमारे पास हम टैक्सोनॉमी की डेवलप करते हैं और उसके अंदर सीरीज ऑफ क्वेश्चन हम डालते हैं ताकि जो हमारे पास अननोन स्पीशी हम उसको डिस्कवर कर सकें, उसको आइडेंटिफाई बेसिकली कर सकें। तो उसके अंदर जो हम उसको डिज़ाइन करते हैं, हम इसको उसकी को इस अंदाज से डिज़ाइन करते हैं कि अगर कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी इंडिविजुअल जिसको प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है सिस्टमेटिक्स का, जब वो भी उसकी को यूज़ करे तो वो उसकी को अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि अगर की आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी तो फिर आपकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी। इसीलिए it is important when you construct a taxonomy key, it should be in simple language and it should be clear and cut, and they are usually heavily illustrated and designed to work even the user has no previous experience with the systematics of the group. They are ones you may have used at the beginning of your research for an फेमिलियर स्पीशीज़। यानी ये ऐसी होनी चाहिए कि आप अपनी रिसर्च की बिगनिंग के ऊपर भी जो अनफेमिलियर स्पीशीज़ उसके लिए आप इसको क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। की सीन मोस्ट एक्सटेंसिवली developed in plant taxonomy and entomology, whereas groups of latic taxa can be very large and guides often include keys to order, families and genera. तो मोस्टली जो हम कीज़ को यूज़ करते हैं टैक्सोनॉमी कीज़ को, वो मोस्टली प्लांट की जो टैक्सोनॉमी हम करते हैं या जो इंटोमोलॉजी डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज़ को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो वहाँ पे जो रिलेटेड ग्रुप जो होते हैं टैक्सा के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ टैक्सोनॉमी की टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशी, and field guides often include keys to order, families and genera. Those who work on group of organisms for which taxonomic knowledge is less complete have few keys to turn to and must remain skeptical of those that do exist. इसमें कि ये जो भी हम टेक्सोनोमी की डेवलप करते हैं, एक तो वो सिंपल होनी चाहिए, एक उसके अंदर जो करेक्टर्स हैं वो भी आसान होना चाहिए। जो इस इंडिविजुअल का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस सिस्टमैटिक्स का नहीं भी है वो भी जब उसके ऊपर काम करे तो उसको आसानी हो। और मोस्टली जो हम टैक्सोनॉमी कीज़ को डेवलप करते हैं तो वो जो है वो प्लांट के जब हम टैक्सोनॉमी करते हैं तो उसके अंदर हम उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर जो रिलेटेड टैक्सा वो बहुत लार्ज होते हैं तो उसके लिए हम उनको क्लासीफाई करने के लिए हम टैक्सोनॉमी कीज़ को यूज़ करते हैं। इसी तरह इंटोमोलॉजी के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज़ होती हैं जब हम उनको भी क्लासीफाई करते हैं तो फिर हम ये टैक्सोनॉमी कीज़ यूज़ करते हैं। और जब भी आपने इंसेक्ट्स के लिए टैक्सोनॉमी कीज़ यूज़ करनी है तो फिर उनके अंदर आपने एंटीना देखना है, उनके अंदर माउथ पार्ट्स देखने हैं, उनकी लेग्स मॉडिफिकेशन देखनी है। यानी जो डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो भी डिफरेंट होगी। हर जो ग्रुप होगा उसके लिए जब टैक्सोनॉमी डेवलप करते हैं उसके अंदर उसके अपने अपने करेक्टर्स के साथ आप अननोन स्पीशी को कंपेयर करेंगे। When the geographically closest monograph or paper you can use to attempt an identification of an unknown is for an area hundreds or even thousands of miles from the locality where the species you are trying identify live, you soon realize that trying to use a key from one of those sources will best help to identify your unknown as none of the above.
At worst, it will lead you to misidentification if you try to force your unknown species to fit one of the available possibilities. In such cases, these are not good as means of identification. तो जब भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हम डिफरेंट सोर्सेज से उसकी हेल्प लेते हैं, और जब भी टैक्सोनॉमी की को डेवलप करें, जब भी टैक्सोनॉमी की को जो है आप यूज़ करें अननोन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो एक चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि आप फोर्सफुली उसको किसी एक पॉसिबिलिटी के अंदर नहीं डालें। सपोज़ कि आपने एक टैक्सोनॉमी की डेवलप की है, उससे रिलेटेड ग्रुप की, और उसके रिलेटेड ग्रुप के मुताबिक भी उसके जो अननोन स्पीशीज़ के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो उससे मैच नहीं करते उस ग्रुप से, तो आप ये ना करें कि आप फोर्सफुली उसको उसी एक ऑप्शन के अंदर डालने की कोशिश करें। उससे अगर आप करेंगे तो आप जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे, और इस केस के अंदर जो कीज़ होगी वो आपकी करेक्ट नहीं होगी, या आपकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो ठीक नहीं होगी। तो बाज़ दफ़ा जो कीज़ होती हैं वो हम रिलेटेड ग्रुप के मुताबिक करते हैं, लेकिन उनसे करेक्टर मैच ना करें तो फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ अदर करेक्टर्स जो होते हैं वो उसकी के अंदर डालते हैं, ताकि हम उस जो अननोन स्पीशी है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। सो वन थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट कि अगर आप एक टैक्सोनॉमी की डेवलप करते हैं किसी ग्रुप से, रिलेटेड ग्रुप के से करेक्टर से, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही टैक्सोनॉमी की डेवलप की है तो उसी बेस के ऊपर जो भी इंडिविजुअल है आपने उसी ग्रुप के अंदर उसको प्लेस करना है, बल्कि अगर उसके करेक्टर मैच नहीं करते तो आप एक अदर अनदर टैक्सोनॉमी की को डेवलप करें। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी टैक्सोनॉमी की को डेवलप करना होता है तो उसके लिए एक इंडिविजुअल के पास टैक्सोनॉमी का साउंड नॉलेज होना चाहिए, उसके पास मॉर्फोलॉजी करेक्टर्स के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पास जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी हमने की हुई है, जितने फाइलम आर्डर क्लास स्पीशीज जीनस हैं उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर वो उन टैक्सोनॉमी की के अंदर साउंड होगा तो वो जो टैक्सोनॉमी की डेवलप करेगा वो ज़्यादा वर्थ वाली होगी, और वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा इजीली वो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी टैक्सोनॉमी की डेवलप करें तो उसके लिए ये बेसिक आपके पास ये बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास वो बैकग्राउंड नॉलेज होगा तो आप आसानी से वो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास साउंड नॉलेज नहीं होगा, आपको टैक्सोनॉमी की के अंदर डिफरेंट जो हमारे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, या जो भी हमारे फाइलम आर्डर क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स हैं अगर आप उनके बारे में उनके डिस्टिंक्शन कैरेक्टर्स के बारे में नहीं जानते, तो फिर आपके लिए जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो डिफ़िकल्ट होगी, और आपकी इंटरप्रिटेशन भी मोस्टली क्या होगी, रॉन्ग होगी। दैट वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टैक्सोनॉमी, sound knowledge of taxonomy is required. And you will more likely be able to identify a species by using matching strategy, that is by comparing your unknown with figured specimens and written descriptions in published literature. Today, that way you are still attempting to match as many of the characteristics as possible, but without the pressure of trying to come out with a one definite answer. For instance, from description in a paper from the nearest available geographic region, you might be able to place your undermined species in a genus. However, slight differences in morphology might indicate that it doesn't belong to any of the species named in that paper. Then your task becomes tracing, and if necessary, examining all discarded species of that genus, continuing the matching process until you either confirm your unknown as belonging to one of them or decide that it must be undescribed. तो जब भी आप किसी भी अननोन स्पीशी को आप कम उस टैक्सोनॉमी की से आइडेंटिफाई करना है तो मोस्टली हम जो है मैचिंग स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, और इन मैचिंग स्ट्रेटजी वी कंपेयर अवर अननोन species with figured specimens and written description in published literature। यानी जो हमारे पास फिगर स्पेसिमेंस हैं या जो रिटन डिस्क्रिप्शन है किसी उससे रिलेटेड स्पीशी की पब्लिश्ड लिटरेचर के अंदर, क्योंकि
हम कहते हैं कि साइंस के अंदर या टेक्सोनॉमी के अंदर वही नेम एक्सेप्ट होता है जो पब्लिश होता है। अगर अनपब्लिश वर्क है तो उसकी साइंस के किसी भी फील्ड के अंदर इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो एक तो ये है कि आप मैचिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करें, उसके अंदर आप जो अननोन आपकी स्पीशी है उसको फिगर स्पेसिमेन से जो आपके पास लैब के अंदर मौजूद हैं, जो आपके पास म्यूजियम के अंदर मौजूद हैं, आप उनके साथ उसको कंपेयर करके उसके करेक्टरिस्टिक्स को चेक करें, या जो आपके पास डिस्क्रिप्शन है, रिटन डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड स्पीशीज़ की जो पब्लिश लिटरेचर है उसके अंदर आप उसके साथ उसको कंपेयर करें। और जितने ज़्यादा आप उसको यूज़ करेंगे इतना ही ज़्यादा आप आसानी से या अगर आपका सोर्स ठीक होगा तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप पर्टिकुलर अनडिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ को क्या कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें। फिर जब आप उनके डिफरेंसेस देखते हैं तो फिर एक बात याद रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि वो स्पीशी आपकी न्यू ही हो, क्योंकि जब आप उसके डिफरेंट ग्रुप से डिफरेंट उसके जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के अंदर जो मेंबर हैं आप उससे कंपेयर करते हैं तो हो सकता है कि वो स्पीशी ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि हर इंडिविजुअल के पास हर डिस्क्राइब्ड स्पीशीज का नॉलेज नहीं है। जब जब भी कोई साइंटिस्ट पे काम करता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अनडिस्कवर्ड स्पीशीज़ को डिस्कवर करेगा। बाज़ दफ़ा डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ को भी वो क्या कर रहा होता है, कहता है कि मैंने उनको डिस्कवर किया, आल दो कि वो स्पीशीज़ ऑलरेडी डिस्क्राइब होती हैं, चूँकि उसका नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता तो उस वजह से वो उसको अनडिस्क्राइब से डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो डिस्क्राइब स्पीशीज़ हैं आप उसके साथ उसकी करेक्टरिस्टिक्स को मैच करने की कोशिश करें, और आप देखें अगर वो मैच हो जाते हैं तो उसी में से किसी डिस्क्राइब स्पीशी का वो क्या होगी, वो मेंबर होगा। लेकिन आपने ये देखना है कि अगर आप उसको उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसके करेक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपने अनडिस्क्राइब स्पीशी को डिस्क्राइब कर दिया हो, या आपने एक न्यू स्पीशी को क्या कर लिया, आपने डिस्कवर कर लिया। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप ये काम करें तो फिर आप मैचिंग स्ट्रेटजी यूज़ करें। मैचिंग स्ट्रेटजी यूज़ करने की वजह से आप जो है फिगर स्पेसिमेन से कंपेयर करके या रिटन डिस्क्रिप्शन जो पेपर के अंदर पब्लिश है उसकी मदद से अननोन स्पीशी को आप क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। This example point out of two of the pitfalls in using keys, though they do not work if the species to which the unknown belongs is not included in the key, and they may lead to misidentification if an unknown shares some of the attributes of a species which were included. Keys also fails if the specimen is hybrid between two species. Zoologists may not have to face this problem too often, but it is very common in some plant groups. The specimen is fragmentary, as in often the case in paleontology, or lacks the characteristics needed, that is, flower, fruit, needed to follow the key. The specimen fails on the borderline of a characters, pose, leap, separating two species. तो जो भी आप स्पीशीज़ कंस्ट्रक्ट करते हो आप इसमें बाज़ मिस आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं। और एक चीज़ जो आपने देखनी होता है कि आप हाइब्रिड तो नहीं ले रहे किसी टू डिफरेंट स्पीशीज़ का, और ये जो हाइब्रिड होते हैं ये ज़ूलॉजी के अंदर तो नहीं होते लेकिन प्लांट के अंदर ये ऐसे हाइब्रिड प्रेजेंट होते हैं। तो फिर इन चीज़ों का जब आप टैक्सोनॉमी कंस्ट्रक्ट करते हैं या जब उसके साथ आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए। But under the right circumstances keys can work perfectly and be great time savers। यानी अगर आप सही circumstances के अंदर और सही अगर आपने की को डेवलप किया है तो ये बहुत टाइम सेवर्स होती हैं। Even long keys up to 200 couplets rarely require the user to make more than a dozen choices to get to any given species. In marine example given earlier, for example, if you used a matching strategy to figure out the genus and then were able to find a monographic treatment with a key that covered all the noun species, you would rely on that key to give you the positive identification or reasonable assurance that you had a new species to describe। तो जो भी कीज़ हैं ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हमें बहुत जल्दी टाइम के अंदर हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं। और इसके लिए एक शर्त क्या है कि आपने वो की अगर सही डेवलप की हुई है। और बाज़ कीज़ जो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर हम कंसिस्ट करती हैं वो भी अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर भी हमें जो आइडेंटिफिकेशन हम उससे करते हैं वो भी हमारा टाइम क्या करती हैं, वो सेव करती हैं।
क्योंकि अगर हम किसी और स्ट्रैटेजी से उसको डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे, उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा बहुत ज़्यादा क्या करेगा, टाइम लगेगा। And the key characters you probably have already used these either as a student or in the identification search for your potential new species. Even if you have never need to write one, as a user of key you should understand that kinds of character used in their construction. To begin with, a key character in taxonomy has nothing to do with a key character in ecology. In ecology, the term key character has been used in the sense of an evolutionary innovation and a character that has allowed a group of organisms to make use of previously unavailable niche. तो जो भी हम अगर आप की को डेवलप कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, रिसर्चर हैं या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि करेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और बाज़ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें की के लिए उनकी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती, और हम की के अंदर ऐसे करेक्टर्स को देखते हैं जो मॉर्फोलॉजी को हैं, जो सुपरफिशियल, जो हम आसानी से क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें। क्योंकि अगर आप किसी की डिटेल आप उसके अंदर डालेंगे तो फिर वो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, वो आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगी और आप आसानी से उसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। Key character choice should be strictly practical, and the characters used in the keys should be the most clear-cut and distinctive diagnostic characters. They do not need to be the most phylogenetically significant characters. In fact, they can be quite superficial, which is why taxonomy keys are sometimes called artificial keys, as long as they lead to the desired result, a correct identification in a few steps as possible. One of the best ways to get an argument going among taxonomists is to start discussing what characters are useful in case. तो जब भी आपने करेक्टर्स यूज़ करने हैं तो वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, और जो भी आप करेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं वो क्लियर कट होना चाहिए, और डिस्टिंक्टिव डायग्नोस्टिक करेक्टर, यानी बाज़ स्पीशीज़ को कुछ उनके डायग्नोस्टिक करेक्टर्स होते हैं, अगर आप उनको लेंगे तो वो आपको स्पीशी की डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। तो आपको जो फाइलोजेनेटिकली सिग्निफिकेंट करेक्टर्स हैं, हमें वो लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बहुत स्टडी की आपको ज़रूरत है, वो आपके लिए मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं। बल्कि हम जो करेक्टर लेते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, इसीलिए हम टैक्सोनॉमिक कीज़ को आर्टिफिशियल कीज़ कहते हैं। और ये एज लॉन्ग एज दे लीड टू डिज़ायर रिजल्ट ए करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, अगर हम सही की डेवलप कर देंगे तो ये फ्यू स्टेप्स के अंदर हमें आइडेंटिफिकेशन दे देंगे। इसलिए जो भी हम करेक्टर यूज़ करें वो आसान होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, फाइलोजेनेटिक वाले नहीं होने चाहिए, डिस्टिंक्शन करेक्टर्स होने चाहिए। हर जो स्पीशीज़ होती हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए डिस्टिंक्शन करेक्टर डिफरेंट होते हैं। अगर आपका इनको नॉलेज होगा तो आप फ्यू स्टेप्स के अंदर जो अननोन स्पीशी होगी आप उसको क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। और अगर आप फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंट करेक्टर्स लेंगे तो वो एक तो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, और आप आसानी से जो है आप उस अननोन स्पीशी को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। That's why it is important to use superficial characters that are very helpful in in identification of unknown species in just few steps. Taxonomic agree that the best taxonomic characters are applied to all members of the taxon, not just to male, female, juvenile, adults, are qualitative and absolute, or observable without special equipment, dissection, or histological abbreviation, or fairly constant, do not show a lot of individual or temporal variation, or fairly indestructible, that is not just easily broken or lost in life, preparation और स्टोरेज। तो जो टैक्सोनोमिस्ट हैं वो मोस्टली कहते हैं कि ऐसे करेक्टर्स को यूज़ करें आप जो सब टैक्सॉन जो पर ऑल मेंबर्स जो टैक्सॉन के उनके ऊपर अप्लाई हो सके, ना सिर्फ मेल फीमेल जुवेनाइल अडल्ट, बल्कि सब के ऊपर क्या हों वो अप्लाई होने चाहिए। और वो जो करेक्टर्स हों वो ऑब्जर्वेबल होने चाहिए विदाउट एनी स्पेशल इक्विपमेंट, यानी आप ऐसा करेक्टर ना यूज़ करें जिसको ऑब्जर्व करने के लिए भी आपको बहुत सारे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े और आपको डाइसेक्ट करना पड़े पार्ट, या आपको उसकी हिस्टोलॉजिकल प्रिपरेशन करनी पड़े। ऐसे करेक्टर्स आपने यूज़ नहीं करने, बल्कि ऐसे करेक्टर्स आपने यूज़ करने हैं जो ऑब्जर्वेबल हों, जिनको आप नेकेड आई से क्या कर सकें, देख सकें। और जो है वो ऐसे करेक्टर यूज़ करें जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना आती हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो ऐसे होने चाहिए जो फेयरली कांस्टेंट हों, और ऐसे करेक्टर लेने चाहिए जो ख़त्म ना हों या ब्रोकन हो या लास्ट ना हो। जब भी आप उनको प्रिपेयर करें, स्टोरेज करें, तो ऐसे करेक्टर्स हों जो डैमेज भी ना हों और आसानी से स्टोर भी हो सकें। तो उन करेक्टर्स को आपने यूज़ करना है,
अगर आप उन करैक्टर्स को यूज़ करेंगे तो फिर आप आसानी से अननोन स्पीशीज़ की क्या कर लेंगे, आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप हिस्टोलॉजिकल वाले में पढ़ेंगे डायसेक्शन, वो आपके लिए इतनी ज़्यादा आपके लिए वर्कलोड बढ़ा देगा और आपके लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आप डायसेक्शन करें तो फिर आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसी चीज़ जो ऑब्जर्वेबल हो, नेकेड आई से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसी चीज़ जो ब्रेक भी ना होती हो, ऐसी चीज़ कांस्टेंट हो, तो वो करैक्टर अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आप आसानी से अननोन स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। It is not always possible to use such ideal character. Obviously, microscopic organisms must be key out under a microscope, for example, but good keys rely on most distinctive and convenient characters that can be found. Continuously variable character, that is measurement of body size, measurement of size of body parts are difficult to handle in case. तो ये इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू यूज़, यानी हर बात ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो करेक्टर हमने डिस्कस किए हैं कि जो ऑब्जर्वेबल हों, कांस्टेंट हों, सबके ऊपर अप्लाई हों, वो आप यूज़ करें। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अंडर द माइक्रोस्कोप आपको नज़र आते हैं, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें नहीं करना पड़ेंगे। आपको फिर उनकी ऐसे करेक्टर्स लेने पड़ेंगे जो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आते हों, और ये ऊपर वाले जो आइडियल करेक्टर वो उस केस के अंदर यूज़ नहीं होंगे। बट जो गुड कीज़ होती हैं वो मोस्ट डिस्टिंक्टिव और कन्वीनियंट कैरेक्टर्स को यूज़ करती हैं। डिस्टिंक्टिव मैंने आपको बताया कि हर जो स्पीशी है उसके लिए डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि उस इंडिविजुअल के पास टैक्सोनॉमी का नॉलेज होना चाहिए ताकि उसको पता हो कि जो स्पीशीज़ हैं उनकी कौन कौन से डिस्टिंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और कन्वीनियंट यानी आसानी से जो करेक्टर यूज़ हो सकते हैं हम उनको यूज़ करते हैं। और जो कंटिन्यूसली वेरिएबल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स, वो डिफ़िकल्ट होती है हैंडल करना कि इसके अंदर, इसलिए इनको हम मोस्टली क्या करते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं जब भी हम टैक्सोनॉमी की को डेवलप करते हैं। क्योंकि इनको हैंडल करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये वैरी करती रहती है। हाउएवर दे गिव वैल्यूएबल आइडेंटिफिकेशन फॉर मैनी ग्रुप्स एंड कैन नॉट ऑलवेज बी एलिमिनेटेड। यानी ये बाज़ दफ़ा ये जो मेजरमेंट बॉडी पार्ट्स के हैं साइज़ के हवाले से ये हमें हेल्प दे देती है, और इसको हम हमेशा टैक्सोनॉमी के अंदर एलिमिनेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल व्हेन वी यूज़ इट 4 to 6 centimeter in length versus 18 to 15 centimeter in length is much more useful than shorter versus taller, especially to a user who has no idea what short or tall means for that group of organisms. तो बाज़ दफ़ा जो ये इस करेक्टर को हम यूज़ करते हैं और हम उसको डिफरेंट यूनिट के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, रैदर देन कि आप उसको शार्टर और टॉलर कहें। क्योंकि जो न्यू जो इंडिविजुअल है जो उनके ऊपर स्टडी करे उसको उसके न्यू शार्टर और टॉलर के उसको टर्मिनोलॉजी की इतनी सेंस नहीं होगी कि ये उन किस पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है। दैट्स व्हाई माय रिकमेंड्स दैट डिफरेंसेस इन क्वांटिटेटिव की कैरेक्टर should be non-overlapping, but this can always be done either. Single access key, analytical and sequential keys. Almost all single access keys are dichotomous keys. Dichotomous means dividing into pairs. Dichotomous keys generally consist of pairs that are also known as couplets of opposing statements, and each statement leads to another pair of choices, sequentially narrowing the user's search down until the final statement identifies the organism in question, usually by its scientific name. And dichotomous key may be designed in two styles, that is bracket are intended, and in most cases the couplets are numbered to help the user follow the sequence, and in a broken bracket key the two leads of the upper of the couplet are set together, and each lead indicates what couplet the user should go the next. As we already discussed, there are different type of these, and one of them is dichotomous keys, in which we use use pair of opposing statements, and each statement basically leads to another pair of choices, sequentially narrowing the user's search down until the final statement identifies the organism in question, is known as dichotomous keys. And dichotomous keys are designed in two styles. One is open style, another one is called a closed style.